हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक्स टेक क्यूरियस। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूँ। हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं दैट स्मार्टफोन इंडस्ट्री हैज़ प्रोबेबली रीच्ड अ लेवल वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इनोवेट. We have to understand that there are always limitations in terms of hardware as well as software capabilities that beyond which you can't innovate. And today the smartphone over essentially past one decade has substantially added a lot of value. I mean, the entire ecosystem has worked towards adding a lot of value. But when we look at smartphones today, more or less the ingredients are same, elements are same. There is no wow innovation kind of anything like that happening. And as a result, we are seeing okay, there isn't any great value. It has just become a replacement upgrade device. And as consumers, also, we don't expect anything great now coming out of it. So, but this is equally challenging for the smartphone OEM. So, how do they keep that momentum of excitement, momentum of wowness on, so that it, with every launch, with every edition, and every year, it at the end of the day excites the industry, excites consumers. That's very important because स्मार्टफोन की ना ओरिएंटेशन ही ऐसी हो गई है एज अ डिवाइस कि इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होती रहती है वो द अदर डिवाइसेस. अगर हम बाकी डिवाइसेस का एवोल्यूशन देखें, बीट से लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स और इवन नाउ वेरेबल्स, उनकी पेस ऑफ इनोवेशन हैज़ बीन मच मोर स्लो. ये तो कुछ रिसेंट ईयर्स में ही थैंक्स टू आई वुड से एंट्री ऑफ स्मार्टफोन मेकर्स इनटू many of such sectors, we have seen innovation also picking up there, or thoda shift in product positioning than what it used to be. Otherwise एक kind of playbook बन गई थी और सब उसी के according devices बना रहे थे. So that credit, yes, goes to the smartphone industry कि जिस segment, जिस category में smartphone industry घुस गई and they started making devices over there. They really brought a bit of dynamism in that category also. Laptop is a great example. अभी कुछ recent years तक कुछ नहीं होता था लैपटॉप में. इवन कलर भी मोर और लेस वही ब्लैक ही होता था, कुछ में वो सिल्वर ग्रे का आ गया, अदरवाइज इट वाज ऑलवेज ब्लैक लैपटॉप. सो वेरी वेरी that contribution I think we should always recognize the smartphone industry for. अब ये एक ओरिएंटेशन बन गई है, एक एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर से कि हर साल हर लॉन्च पे कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव होगा. बट एट द सेम टाइम ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हम देख रहे हैं नहीं, दिस इज वेरी इंक्रीमेंटल, दिस इज काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव लाइन कि ऐसे ही कुछ हाँ वी वेर एक्सपेक्टिंग एज कंज्यूमर्स कि हाँ यही तो होगा अब नेक्स्ट इस चीज़ में. लाइक 5G, हाँ पता ही अब तो 5G होगा, सो व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट, ओके. Or in today's time now AI, हाँ अब तो AI होगा, what's the great thing about it. So जो एक न्यू एडिशन होता था, एक completely नया डायमेंशन आता था स्मार्टफोन में, that innovation has stopped. Now what does the smartphone industry do in this case? अब अगर this is the scenario, so what do they do? ये एक्साइटमेंट कैसे रहेगी? Now I feel personally ये एक्साइटमेंट अब विद इन द इंडस्ट्री नहीं आ पाएगी. This is the time for smartphone industry to look for real value, added collaborations. So when I say collaboration, these are not brand level collaborations कि okay मैंने BMW, Ferrari उनके साथ collaborate किया because it then gives that positioning कि okay it has something to do with performance, speed, at times gaming. So वो एक brand level perception बन जाता है, but that doesn't add anything to the product, okay. लेकिन अब टाइम आ गया है वैल्यू ड्रिवन कोलैबोरेशंस का स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ना इसमें भी हमें सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा. अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करें जहां पर हमारे फोल्ड फोन्स हैं फॉर इंस्टेंस, नो अंडरस्टैंड फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर इज प्राइमरली फॉर कंटेंट कंजम्पशन. कंटेंट क्रिएशन है उसमें, बट प्राइमरली ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स कंटेंट कंजम्पशन. एट द सेम टाइम जो वो वाला कोहर्ट है वेरी सुपर प्रीमियम यूजर्स का,
they're avid readers also, and they read a lot of very reputed publications globally. So instead of thinking कि क्या okay let me get वही plain vanilla Amazon Prime subscription, Netflix subscriptions, those will not work in this segment. क्यों? For two reasons. एक, जो वो वाला segment of users है, they are not really very binge watchers, कि वो हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम करें, मोबाइल पे कंटेंट, दे विल वॉच समथिंग एट लीजर, और उसके लिए उनके घर में होम थिएटर्स हैं, बड़े स्क्रीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ राइट फिट. अब वहाँ पे क्या वो कर सकते हैं, हियर इज एन ऑप्शन, आप कंटेंट का कोलैबोरेशंस लाइए ना उनके लिए. देयर आर वेरी गुड रेप्यूटेड पब्लिकेशंस विद इन इंडिया जिनके अब सब्सक्रिप्शंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड देन देयर आर ग्लोबल पब्लिकेशंस आल्सो जिनकी सब्सक्रिप्शंस आप उस लेवल ऑफ यूजर के लिए ला सकते हो. Like as an example, HBR, there is hardly any business executive of beyond a certain level, और essentially जो right audience है, foldable phones खरीदने के लिए, जो कि foldable phones costing 1.3 lakh 4 lakh above, उनके लिए आप लाइए ना HBR के subscriptions bundled, okay? So और also look at, there is also premium में हमेशा customization means a lot. So why can't you have say Sabyasachi editions, okay? आप और इसमें बहुत थोड़ा पॉसिबल भी है क्योंकि आप प्री बुकिंग करते हो, आप एट टाइम्स मंथ्स इन एडवांस प्री बुकिंग्स कर लेते हो. सो व्हाई कांट इट देयर बी एन ऑप्शन कि भाई ओके आपके लिए कस्टमाइज हम लेदर कवर्स भेजेंगे या कुछ करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड दोज कुड बी कोलैबोरेशंस विद वेरी बिग लेबल्स आउट देयर. उसके अलावा देयर ऑफ कोर्स गोल्फ हो गया, इट्स अ गेम विच इज़ वेरी मच रिलेटेबल विद दैट सेगमेंट. एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस हो गए, मेंबरशिप्स ऑफ क्लब्स हो गई. सो दोज आर द थिंग्स नाउ विच स्मार्टफोन इंडस्ट्री स्पेशली एट दैट टियर विल हैव टू लुक एट. आप स्मार्टफोन में से ज़्यादा वैल्यू नहीं निकाल पाओगे और आप प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आपने 5G लाया, what is the result of 5G in a smartphone today? You are at best able to retain the price. आप उससे प्राइस को ऊपर नहीं ले पा रहे हो, ओके? आप AI ला रहे हो, what is the outcome of AI? Can you today even dare to offer AI on subscription? No. So आप वहाँ से monetize नहीं कर पाओगे. Can you charge more because of getting including AI elements into the device? No. At best आप retain कर पा रहे हो, और maybe जो normal inflation होता है उसको you are able to absorb with it. So net वो आपका value growth भी रोक देगा, decelerate हो जाएगा उसका growth हो. So you will have to now look at value beyond द इकोसिस्टम. वैसे ही फिर अगर हम मिड लेवल की, एंट्री लेवल की बात करें, वहां पे भी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन लुक एट कोलैबोरेटिंग विद द इकोसिस्टम एंड ब्रिंग दैट वैल्यू फॉर द कंज्यूमर, ओके? अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एड्यूटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेशन करिए. अगर मिडिल क्लास आपका टारगेट सेगमेंट है, सो कोलैबोरेट विद क्विक कॉमर्स काइंड ऑफ थिंग, ब्रिंग सम गुड डील्स आउट देयर. As you know, 2 years back we did one of those studies जो एक वीवो के रिपोर्ट में आया था, इम्पैक्ट रिपोर्ट में, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ स्मार्टफोन मेजर किया था, और उसका टेक अवे था कि जितना एक कंज्यूमर स्पेंड करता है इन ओनरशिप ऑफ अ स्मार्टफोन, उसके 6 times वैल्यू वो निकाल लेता है उस स्मार्टफोन से, थ्रू बाइंग ऑनलाइन, सेविंग ऑन टाइम, सेविंग ऑन कम्यूट ट्रैवल जो लगता है शॉपिंग के लिए, पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ते. सो देयर इज अ लॉट ऑफ सेविंग आप कर रहे हो अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो एट टाइम्स, अगर हम उस एंगल से देखें तो इतना इसकी वजह से एक इकोनॉमिक वैल्यू स्मार्टफोन का है. तो अब आप इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा कि हम वो इकोनॉमिक वैल्यू कैसे और एनहेंस कर पाए फॉर अ यूजर. अब यूजर को भी पता है कि मेरे को स्मार्टफोन में बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू आई वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट. ठीक है, कैमरा एनहेंस कर दिया, बैटरी लाइफ एनहेंस कर दी, AI के फीचर्स कुछ डाल दिए, और डिस्प्ले को एनहेंस कर दिया, ऑडियो क्वालिटी को एनहेंस कर दिया. बट वो एक कंज्यूमर को अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, मैं अगर अभी 15,000 का फ़ोन ला रहा था, अब मैं 20,000 का फ़ोन ला रहा हूँ, तो इसमें तो उससे बेटर ही होगा ना.
सो दैट इज a लॉजिकल एंड नेचुरल गिवन प्रोग्रेशन कि हाँ ये तो पता ही है, मैं जितना महंगा फोन लाऊंगा उतना उसमें ज्यादा चीजें मिलेंगी. अब वैल्यू कहाँ आएगा? फ्रॉम दिस एक्सटर्नल कोलैबोरेशन. आपको राइट इकोसिस्टम के साथ देखना है, एंड उसमें आपको यू हैव टू रियली लुक विच आई थिंक आई हैव बीन नाउ टॉकिंग अ लॉट अबाउट. आपको सेगमेंट को नहीं, आपको कोहर्ट को देखना पड़ेगा. यू विल हैव टू लुक एट कोहर्ट्स. आपको मल्टीपल कोलैबोरेशंस लानी पड़ेगी. दैट इज वहां पे आप कस्टमाइज कोलैबोरेशन ला सकते हो. फॉर इंस्टेंस समबडी पिक चूजिंग कि मुझे क्विक कॉमर्स की कोलैबोरेशन चाहिए या मुझे एडुटेक की कोलैबोरेशन चाहिए, और समथिंग एल्स, देयर कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो जो हो सकता है. तो दीज आर द थिंग्स नाउ जो एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा. अभी आई नो टाइम इज शॉर्ट, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ फेस्टिव सीजन पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट येस वी हैव टू नाउ लुक इनटू दिस डायरेक्शन. तब जाके हम 2025 2026 और कमिंग ईयर्स में एक वैल्यू एनहांसमेंट की तरफ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अब कुछ भी करें, द टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ स्मार्टफोन और वॉल्यूम्स जो बोलते हैं हम, उसको हम किसी भी तरीके से बहुत टाइम से एनहांस नहीं कर पा रहे हैं. इट इज स्टैग्नेटेड. हम एट बेस्ट 150-160 मिलियन के आसपास फोन्स बेच पाते हैं, न्यू फोन्स, एंड ऑन टॉप ऑफ इट 20-30 मिलियन second hand or the such kind of refurbished market है. तो we are not even touching 200 million phones being sold in any year, और ये ट्रेंड पिछले 4-5 साल से it is only there. थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, और आगे जाके भी we are not expecting any shift, क्योंकि fundamentals of economy are more or less the same. डिवाइसेस का इकोसिस्टम more or less same है. अच्छा, अब हमारा कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैज गॉन अप. तो अगर इवन इफ समबडी इज एबल टू कहीं से कुछ सेविंग वेविंग करके एक अच्छी सी डिवाइस ला दी 8-10 हज़ार की, बट उसको फिर रन करने में भी इशू है, क्योंकि कॉस्ट हैव गॉन अप, टैरिफ्स हैव गॉन अप ऑफ द सर्विसेज. तो ये सब चैलेंजेस अब रहेंगे हमारे को, जो हमें समझना है, एंड दैट इज वेयर वी नीड टू गेट वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब आगे को. And as an ecosystem, the entire smartphone industry will have to look at those kind of collaborations. कैसे हम इसमें help कर पाएंगे? That is something which is very much required for the industry to look forward at. आप मुझे अपनी opinions बताएं. What do you feel about this kind of thought process कि now there is need to have collaboration beyond ecosystem? You cannot create value within the ecosystem. What do you think about this kind of thought? Do let me share your opinions, views. I really appreciate you sharing your views and thoughts. It helps in an enriching and lively debate, and at the same time ये एक validation हो जाती है of what the industry is also thinking. I'll be really looking forward to your views. And we'll meet again in the next edition, next episode of Tech Curious. Till then, have a great time.